See, I'm clicking on Diksha app. So when I click on the Diksha app, this is the first screen that comes in. So there it is just asks you to enter your preferred language. So because all the TB lessons are available in Hindi and English, so it is ideal that we select Hindi and English both, or you can select any one actually here, because it doesn't matter, because we have filters going forward as well. So for now I am selecting English. Click on continue. Then we get another screen. So just to give you a background, Diksha app is an app which is used by students and teachers across India, and that is why you see these options. It has been repurposed to be used as a platform for COVID warriors, and now we have uploaded TB lessons as well. So that is why you see certain screens which are not completely relevant to us, but still they are part of the platform. So we just need to navigate through them. So when you come on the second screen, it asks which category do you belong to. So because we are not in any of the category, teacher, student, parent, or head teacher official, we just click on other. So we click on other. Then it takes us to the next screen. Now at the bottom of the screen, you can see there is a select board option. Click on this option, select board. And it gives me various options. So as you can see, there are various options, but our courses are uploaded on iGot platform. So we click on iGot Health and click on submit. So the board is iGot Health. Medium, here you can select any number of mediums. So for now I am selecting English and Hindi both. Click on submit. Class is what category of COVID warrior or what category of audience you belong to. So as you can see, there is an option of TB champion. So I click on TB champion and I click on submit. So these three options, basically we enter first in board iGot Health, in medium English and Hindi, and in class TB champions. Now I'll click on continue. Now when I click on continue, it gives me a pop-up whether you want to switch to the new experience. So I'll just click that. If you don't click that, you'll see a different experience, but that is just the difference in user interface, nothing else. So I'll click on switch to new experience. So now you can see different courses here. If I have to sort of navigate to a course here. How do I do that? I'll click on course, browse by category. And as you can see, there are different courses here. You can see, you click on view more, you'll be able to see all the courses. I'll also show you how you can use this to scan the QR codes from the document that you would have received from the central authority, where you have QR codes for all the lessons. So let me just show you that before I enter a course and ask you to navigate through the courses. So now I'm scanning the code. So when I click on the center button, the QR code scanner, यहाँ पे एक पॉपअप आता है जिसमें परमिशन कहता है Diksha uses camera permission to scan QR code. तो इसको allow पे क्लिक करना है. When I click on allow while using the app, it's on you. So now, because I scanned it completely, so it has taken me to that course for which I scanned the QR code. So the course का नाम है 2021 TB की मूलभूत जानकारी. So इस कोर्स पे हम डायरेक्टली आ गए. मैंने अपने पैम्फलेट से QR कोड स्कैन करा एंड डायरेक्टली आई एम ऑन द कोर्स. नाउ आई विल क्लिक ऑन जॉइन कोर्स टू एक्सेस द कोर्स. अगर मुझे कोर्स करना है तो मुझे जॉइन कोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा. तो आई विल क्लिक ऑन जॉइन कोर्स. सो अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ था, इसलिए मुझे पॉपअप दे रहा है यू मस्ट लॉगिन. सो जब मैंने डेमो स्टार्ट किया तो मैंने दीक्षा ऐप इंस्टॉल करा था. दीक्षा ऐप ओपन करके वो 3-4 स्क्रीन मैंने नेविगेट किए. And I can see all the courses. I can scan the courses from the pamphlet. लेकिन अब मुझे कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा. तो लॉगिन करने के लिए I'll click on login. अभी मेरा लॉगिन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो I can directly login. But for people who are accessing this app for the first time or the platform for the first time, they will need to register themselves. अब रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से हो सकता है. एक, आप अपने ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं या आप अपने फोन नंबर से कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको यहाँ रजिस्टर हियर पे क्लिक करना होगा. जब आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आ जाता है. ये आपकी ईयर ऑफ बर्थ मांगता है. आप अपना ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस. अगर यहाँ मोबाइल नंबर सेलेक्टेड है तो आप यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना पासवर्ड सेट करेंगे
कंफर्म करेंगे और इसको टिक करेंगे आई अंडरस्टैंड और रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप ईमेल आईडी से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड यहाँ लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके वापस आप रजिस्टर कर देंगे। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन आईडी आपका मोबाइल नंबर होगा या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा। अब हम वापस जाते हैं क्योंकि मेरा ईमेल आईडी और ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूजर नेम पासवर्ड। सो आई विल क्लिक ऑन लॉगिन विद दीक्षा। अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो दूसरी स्क्रीन आ गई, उसमें मुझसे वो ईमेल एड्रेस या फोन नंबर मांग रहे हैं। मैंने फोन नंबर से करा था तो आई विल एंटर दैट, फिर आई विल एंटर द पासवर्ड दैट आई हैड सेट। अब ये वापस उसी कोर्स पे मुझे ले गया क्योंकि मैंने यहीं पे ज्वाइन कोर्स था, वो ज्वाइन हो गया क्योंकि मैंने लॉगिन कर लिया तो ज्वाइन हो गया। नाउ आई कैन स्टार्ट लर्निंग। तो अभी आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे प्रोग्रेस 0% कंप्लीटेड, क्योंकि अभी मैंने कोर्स स्टार्ट नहीं किया इसलिए यहाँ पे आपको प्रोग्रेस 0% दिखा रहा है। लेट मी स्टार्ट द कोर्स। अब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ये भी नीचे देख सकते हैं, ये 2 टैब हैं। एक कोर्स डिटेल, वो आपको बताता है कि ये कोर्स टीबी चैंपियन के लिए है, कोर्स हिंदी में है, कोर्स आई गॉट प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड है। जब आप कोर्स मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं बताता है इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं आपके कोर्स में। पहला मॉड्यूल है ये, दूसरा मॉड्यूल है ये। तो अब हम स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो मेरा पहला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। इसको आप टिक मार्क कर दीजिए। आप इसमें बता रहे कि ये आपको बता रहे कंफर्म प्रोफाइल नेम, तो मेरा प्रोफाइल नेम श्रेया दिया हुआ है। तो वो ये बता रहे हैं जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, तो उसमें श्रेया नाम लिख के आएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ और नाम लिख के आए, मतलब आप अपना पूरा टाइटल वगैरह के साथ देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डॉक्टर, यू वांट टू राइट डॉक्टर श्रेया मोदी, देन यू कैन एडिट इट फ्रॉम हियर। आप इस पेन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू एडिट दैट। मैंने यहाँ सिर्फ श्रेया लिखा हुआ है इसलिए यहाँ श्रेया दिखा रहा है, और उस पर आप एडिट करके इसको सबमिट कर सकते हैं। आपका रोल क्या है आप सब इसमें लिख सकते हैं। आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन सा सब रोल है आपका। तो आप टीबी चैंपियन है तो आप नर्सेस की जगह यहाँ टीबी चैंपियन सेलेक्ट करेंगे और वो करके आप सबमिट कर देंगे। अब वापस बैक जा सकते हैं। अब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट लर्निंग। मुझे यही चाहिए तो आई जस्ट क्लिक ऑन टिक मार्क एंड स्टार्ट लर्निंग। अब ये मेरा पहला मॉड्यूल है, यहाँ पे प्ले कर देंगे। तो ये दिस इज अ प्रेजेंटेशन। तो आई कैन सी, एज यू कैन सी द प्रेजेंटेशन, देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स। अब यहाँ से एरो टिक नेक्स्ट भी जा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको स्वाइप अप भी कर सकते हैं, या तो आप लेफ्ट राइट जा सकते हैं, या फिर आप अप डाउन भी जा सकते हैं। तो ये जब आप ये सारे स्लाइड्स आप पढ़ लेंगे, एंड तक आप चले जाएंगे, तो अब ये यू जस्ट कंप्लीटेड, मतलब आपने ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट पे जाना है, तो अब ये नेक्स्ट एरो क्लिक कर देंगे। अभी नेक्स्ट मॉड्यूल आ गया, इंडिया साइलेंट एपिडेमिक। इस पे वापस हम प्ले कर देंगे। ये एक वीडियो है तो वो वीडियो प्ले हो जाएगा। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा वॉल्यूम यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। मेरे फोन का वॉल्यूम अभी कम है तो आपको वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ये पूरा वीडियो जब देख लेंगे तो ये मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल भी आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये मॉड्यूल भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपको वापस अपने कोर्स पे जाना है, आपको देखना है आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। तो आपको ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में एक एरो दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि आपने एक मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस आपका 67% कंप्लीटेड दिखा रहा है। आप अगर नेक्स्ट जाते तो आप दूसरा मॉड्यूल भी कर लेते तो फिर आपका 100% हो जाता। और जैसे ही आपके सारे मॉड्यूल्स एक कोर्स के हो जाएंगे तो फिर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अब तो ये सेकेंड मॉड्यूल पे मैंने क्लिक किया, इस पे वही स्टार्ट लर्निंग। ये है आपका असेसमेंट, मूल्यांकन। तो आपने कोर्स कर लिया है, आपने एक पीपीटी देखी, आपने एक वीडियो देखा। अब हम चाहते हैं कि आप ये असेसमेंट लें ताकि हमें मतलब आपको भी पता चले आपको समझ आया है कि नहीं मॉड्यूल, या आपको फिर से करने की जरूरत है। तो इसमें आपके 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मल्टीपल चॉइस। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप आंसर टाइप करते हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कोई आंसर टाइप किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, आंसर किया। सो आई एम नॉट रीडिंग इट, बट इस तरह से हम क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, जो भी हाँ सही लगता है क्वेश्चन के हिसाब से। अब उसने मुझे बताया ये मैंने 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 आंसर किए हैं। अब मैंने इसको सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने से मेरा स्कोर आया है 3 on 10। सो अब मुझे इफ आई एम नॉट हैप्पी विथ माई स्कोर, आई कैन रीडू द असेसमेंट।
ठीक है, और अदरवाइज आई एग्जिट। सो ये मेरा कंप्लीट हो गया, स्कोर मेरा असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया। अभी वापस जाएंगे तो अभी आपको देगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स। तो जब आप दोनों सारे मॉड्यूल्स किसी भी कोर्स के सारे मॉड्यूल्स आप कर लेते हैं, तब आपको यहाँ पे दिखाते हैं 100% कंप्लीट। तो इसमें सिर्फ 2 मॉड्यूल्स हैं, एक में जिसमें आपका एक पीपीटी और वीडियो था, दूसरे में जिसमें आपका असेसमेंट था। लेकिन ऐसे भी कोर्सेज हो सकते हैं जिसमें ज्यादा मॉड्यूल्स हो। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, एज लॉन्ग एज यू आर कंप्लीटिंग ऑल द मॉड्यूल्स इन अ लेसन and you are getting 100% completion, then you will be able to generate a certificate. Now I'll tell you how to generate from where you can download the certificate. So आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एरो दिख रहा होगा, ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में, उस पर हम क्लिक करेंगे और हम मेन स्क्रीन पे आ गए अपने होम पेज पे। अब यहाँ बॉटम राइट में एक आइकन बना है पर्सन का, इस पे हम क्लिक करते हैं। ये मेरा प्रोफाइल यहाँ से मुझे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अपने सारे लर्निंग का पूरा डिटेल दिखेगा। तो ये जितने कोर्सेज आपने आज तक किए हैं या आपने स्टार्ट किए हैं, जो चल रहे हैं या कंप्लीट हो गए, वो सब आपको यहाँ दिखेंगे। तो एज यू कैन सी मैंने कई कोर्सेज स्टार्ट किए थे बट कंप्लीट नहीं किए, तो वो ऑनगोइंग दिखा रहा है। जो कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया होगा वो यहाँ पे कंप्लीटेड दिखाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने कोर्स तुरंत कंप्लीट किया तो इसमें रजिस्टर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत आपको नहीं दिखाता है। जनरली आपको 6-7 घंटे के बाद देखना चाहिए, तो इसमें दिखाने लगेगा। तो अगर मैंने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है और मुझे उसका सर्टिफिकेट जनरेट करना है, तो आपको यहाँ पे ये बटन दिखेगा सर्टिफिकेट का, क्योंकि ये कोर्स मेरा कंप्लीटेड है। इसमें लिखा हुआ है प्रोनिंग फॉर सेल्फ केयर कंप्लीटेड, सर्टिफिकेट अलाउ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में कर लेंगे या पीएनजी में कर लेंगे। ये सर्टिफिकेट अभी डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड होके सर्टिफिकेट जनरेट हो। दिस इज माय सर्टिफिकेट फॉर प्रीवियस कोर्स दैट आई हैड कंप्लीटेड। ये वाला भी आपने कंप्लीट किया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको रिफ्लेक्ट होने में। तो हम वापस जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, बैक करके होम पे चले जाएंगे। ये होम वाले साइंस है, आप होम पे जा सकते हैं। अभी ये तो हमने QR कोड स्कैन करके किया था, लेकिन मान लीजिए मुझे डायरेक्टली यहाँ पे देखने हैं कितने कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं टीबी रिलेटेड। तो यहाँ हम चेंज पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे मेरा सब सही है, मतलब आई गॉट हेल्थ, इंग्लिश, हिंदी, टीबी चैंपियन, MOHFW, ये दिस इज करेक्ट। नाउ आई वांट टू सी ऑल द कोर्सेज व्हिच आर इन दिस कैटेगरी। सो आई क्लिक ऑन कोर्स। यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखेंगे MOHFW पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि सारे उसी के अंडर अपलोडेड हैं। रोल जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। अब यहाँ पे सारे कोर्सेज देख सकते हैं। व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज, जितने भी टीबी के कोर्सेज हमने अपलोड किए, आपको सब दिख जाएंगे। या आप किसी और तरीके से सर्च करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम भी टाइप कर सकते हैं। सर्च में जाके आप नाम भी डायरेक्ट करेंगे, वहां पे भी आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। Now this was about registering on the platform, accessing a course on the platform, logging into the platform and generating a certificate. So as you can see, it's a very easy process. Same steps आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। igot.gov.in पे क्लिक करके सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं, सेम स्क्रीन आते हैं। बट इफ यू आर मोर कंफर्टेबल ऑन द ऐप, आप ऐप पे भी कर सकते हैं। TBR के साथ ही एप्लीकेशन, so you will have to click on the right lower corner. So you will be either provided a OTP on your registered mobile number, or in case you have already logged in, then use your biometric or verification, you will be able to log in. I've already logged in to this test patient, so I'm using my biometric for verification. So we see the landing page wherein instructions on the TB Champion self-learning course is available. So the user would just click on learn more, and we'll be able to see all the lessons in the 7 links of either English or the Hindi. So you can just expand this tab and then go to the course. We'll be redirected to the Diksha platform. So the content above is available in 11 different languages. So the overall instruction is available to the different users in different languages.